Today we're gonna discuss about mutual fund. So hello people, what's up? It's me Nidhi and yeah, I'm back with an interesting topic on mutual fund and this video is dedicated to that. So the basic and the main point which I'm discussing in this video is related to what is mutual fund, type of mutual fund, taxes involved in mutual fund, and at the end the key feature which you have to keep in your mind before investing into any mutual fund is being the part of this video. So stay tuned, and if you're new to the channel then make sure to like, share and subscribe the channel and also comment down below. So let's get dive into the video and the first topic जो हम discuss करेंगे is what is mutual fund. तो mutual fund is like when you don't have much idea about stock and stock market, you don't have much information कि how to start and कैसे चीज़ें कैसे stock pick करते हैं at the end, then mutual fund is the best way to invest or start or to be in this field, and it's the easiest way. And mutual fund is work on by some good person who is have great experience in stock and stock market, and they are called fund manager who gonna be manage your fund at the end, and they make sure that whatever you are investing is being invested at a right place so that you get a good return out of it. So that's the main work of a fund manager. In this you are giving some amount of money to a particular person who is now investing that money to different places, and their main job is to get out a good return out of it. That's it, that's it about mutual fund. Now we're gonna discuss about type of mutual fund, जो कि basically division उनका होता है on the basis of किस तरीके के आप companies में invest करते हो at the end, like how large and how much revenue that company would generate. On the basis of that we're gonna divide mutual fund into 3 categories. The first one is large cap companies, जिसके अंदर होता है कि अगर आपका market capital जो आप है उस company का अगर वो 20,000 करोड़ से ऊपर है, then definitely अगर आप उन सब फील्ड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड आपका उन सब चीज़ों में इन्वेस्टेड है, तो वो लार्ज कैप कंपनी के अंदर आता है. अदर देन दैट देर इज़ अ मिड कैप कंपनी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग जिसकी रेंज अप्रॉक्स 5,000 करोड़ टू अप टू अप्रॉक्स 20,000 करोड़ के बीच में आती है. देन इन दैट केस इट्स अ मिड टाइप cap company. And the third one is if the company is below than 5,000 crore, then it would be lie in low cap companies. So if the investor is investing in large cap companies, then definitely उनका जो expense ratio होता है वो काफ़ी कम होगा. But if the person is investing into small companies, small firms, then there is definitely a high expense ratio and exit load as well is high in that case. Because अगर आप low और small companies में invest करते हो, then there might be chances कि risk बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो risk बढ़ जाता है, तो risk बढ़ने के साथ साथ आपके gain और loss होने की जो probability है वो भी बढ़ जाती है. देयर माइट बी वेरी मच चांसेस दैट कि बहुत छोटे कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, कभी कभी 95-96% रिटर्न्स दे देते हैं. तो दैट ऑल्सो भी पॉसिबल इन द पास्ट. हमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये चीज़ें प्रूवन हुई है कि बहुत सारे स्मॉल कंपनीज भी हैं जिन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यू गेट अ गुड रिटर्न. एंड बहुत बार बहुत अच्छे कंपनीज भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते, बट अगर वो लार्ज कैप कंपनीज हैं तो आपको उतना लॉस नहीं होगा. तो इन दैट केस ये चीज़ें होती हैं. एंड वी गोना डिस्कस अबाउट एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट टैक्सेस जो हमें पे करने पड़ते हैं ना म्यूचुअल फंड. अगर हमने कुछ अप्रॉक्स नेट गेन प्रॉफिट अर्न करा, इन दैट केस वी हैव टू पे. बट वो भी सिनेरियो है, कोई फिक्स्ड रेशियो है, उसके बाद पे करना पड़ता है. अगर हमने 1 लाख से लेट सपोज अगर हमने अप्रॉक्स 10 लाख इन्वेस्ट करा और अगर मुझे पूरे एक साल के अंदर मुझे सिर्फ 80,000 रिटर्न मिल रहा है, then in that case I don't have to pay anything. गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर आपने पूरे एक साल में अगर आपने कुछ भी इन्वेस्ट करा बट आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट गेन जो है, नेट कैपिटल गेन है, अगर वो 1 लाख से कम है, देन इन दैट केस यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स. बट अगर आपके टैक्सेस अगर आपका जो भी गेन है वो 1 लाख से ऊपर चला जाता है पर ईयर,
तो इन दैट केस यू हैव टू पे सम टैक्सेस, जो कि डिपेंड करता है कि आपका जो कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट करा है वो कितना लाइक लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो इन दैट बेसिस हमने टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो पहला जो टैक्स है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को, अपने किसी भी कैपिटल को इन्वेस्ट करा इन अ म्यूचुअल फंड और आप उस चीज़ को विड्रॉ करा रहे हो या बाहर जब भी निकालना है वो अगर 1 ईयर की बात कर रहे हो, तो इन दैट केस और आपकी जो प्रॉफिट आ रही है, नेट प्रॉफिट जो आ रही है, नेट गेन जो आ रही है 1 लाख से ऊपर है, देन इन दैट केस यू हैव टू पे 10% ऑफ योर प्रॉफिट एज अ टैक्स। वेयर एज अगर आप शॉर्ट टर्म में चलते हो तो क्या होता है कि अगर आपने लाइक ईयर ख़त्म होने से पहले, लाइक 12 मंथ ख़त्म होने से पहले आपने पैसे निकाल लिए, विड्रॉ करा लिए, देन इन दैट केस यू हैव टू पे 15% ऑफ योर नेट प्रॉफिट। And finally, let's talk about the important and basic terminology which you have to keep in your mind before investing into any mutual fund. So the first one is about expense ratio. Expense ratio means that if you are investing some particular capital in a mutual fund, if you are decided कि मैं इतने पैसे तो दे दूंगा एज इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, सो इन दैट केस दे हैव अ पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट कि इतना परसेंटेज वी गोना डिडक्ट एज अ एक्सपेंस रेशियो। सो लेट्स सपोज कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अप्रॉक्स 1000 rupees and if the expense ratio of that mutual fund is 0.01, then in that case they deduct approx 10 rupees as a expense commission or expense charge, जो भी कह सकते हो आप, and they invest rest of it, like 990 rupees is being invested in your mutual fund and in your stocks and 10 rupees is being deducted from that. So it's so simple, yeah, it's simple. बट द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड हियर इज़ कि जितना कम से कम हो, मिनिमल जितना कम से कम हो आपका एक्सपेंस रेशियो उतना बेहतर है आपके लिए, आपके स्टॉक के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके मनी ग्रोथ के लिए एट द एंड। सो दैट्स इट। एंड द next topic is SIP, like systematic investment plan, in which you are investing a particular small amount of money periodically. like आपने डिसाइड कर लिया है कि मतलब मैं 1000 रुपीज़ हर मंथ पे करूँगा, हर मंथ मेरे कट हो जाएंगे, मेरे जो भी इनकम है वहाँ से 1000 रुपीज़ एक पर्टिकुलर डेट को कट हो जाएंगे एंड दे गोना बी इन्वेस्टेड इन माई म्यूचुअल फंड, इन माई जो भी है, इन माई स्टॉक्स। तो ये है SIP का रोल। और SIP भी जितना कम हो उतना बेहतर है, बिकॉज लाइक किसी किसी चीज़ों में आपकी SIP 2000 होती है, तो आपको 2000 10,000 जो भी होती है मिनिमल आपके कितने चार्ज आप कर सकते हो, तो उसका अगर एक पर्टिकुलर उनका रेंज होता है कि मैं 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपीज़ अगर है तो और बेहतर है आपके लिए, बिकॉज लाइक इनिशियली स्टार्ट करना, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देना अपने इनकम से, वो थोड़ा टफ होता है, बट धीरे धीरे वो चीज़ें हैबिचुअल हो जाती है, बट इनिशियली इट्स बिकम टफ। तो आप कोशिश करो कि जितना कम हो उतना बेहतर है इनिशियल डेज़ के लिए, फिर धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हो। तो SIP भी ध्यान में रखनी है। अदर देन दैट लंप सम एक अदर चीज़ है जिसमें क्या होता है कि आप एक साथ लाइक यू आर डिसाइडेड कि मैं तो बहुत बार डिडक्ट नहीं कराऊंगी, मैं रोज़ नहीं जा रही हूँ, हर मंथ नहीं जा रही हूँ अपना कट ऑफ कराना है अपने पेमेंट से, मैं एक बार जाऊँगी और सारे पेमेंट करके आ जाऊँगी। तो लमसम में क्या होता है कि इसमें आप सारी जो पेमेंट करते हो इकट्ठे करते हो, एक बार ही करते हो, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर सोच समझ के हर जगह डिसीजन लेना पड़ेगा इस केस में, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें इनिशियल्स भी अच्छी रहे और फाइनली भी अच्छी हो, बिकॉज मैंने एक टाइम पे ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। बट अगर आप SIP में देखो तो आपकी ये सोच होती है कि इनिशियली में भी उतना अच्छा ना हो, पर हम मुझे बिलीव है कि एट द एंड ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करेगा, तो मैं इसलिए इसमें इन्वेस्ट करूँगा। मेरे लिए इनिशियली मान लो कि मेरे पास जब मुझे फील होने लगे कि लॉस हो रहा है तो मैं फिर इन्वेस्ट करना बंद कर दूँगा। SIP में ये चांसेस होते हैं, बट लमसम में ये चांसेस नहीं। आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया आपने तो फिर लॉस अगर होगा तो हो ही जाएगा, प्रॉफिट भी होगा तो हो ही जाएगा। तो दीज आर द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अदर देन दैट लास्ट वन इज़ दैट कि आपका एग्जिट लोड कितना है। लाइक ये भी चीज़ होती है कि जब आपके जितने रिटर्न्स आते हैं उन पे भी कुछ ना कुछ परसेंटेज लग रहा होता है। मान लीजिए आपने 10,000 या 10 लाख जो भी आपने पे करी, उसमें आपका अप्रॉक्स 150 जो भी 1,50,000 आपके रिटर्न आए तो एज अ गेन,
तो उसमें मान लीजिए किसी का एग्जिट लोड जो है वो 1% है, तो 1% डिडक्ट हो जाएंगे आपकी कैपिटल गेन में से, एंड जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो आपको मिल जाएगा। एंड ये भी ध्यान में रखना है कि अगर 1,50,000 आपको मिल रहा है एज अ रिटर्न 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पे, तो आपको लॉन्ग टर्म वाली वो टैक्सेस भी पे करने होंगे उसके साथ साथ। या फिर अगर शॉर्ट टर्म में मिल रहा है तो आपको फिर 15% नॉट 15,000 15% एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले सिनेरियो में। तो दीज आर द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और फाइनली एक लास्ट पार्ट रह गया था विच इज़ अबाउट रिस्क। तो रिस्क इज समथिंग जिसकी बेसिस पे भी हम म्यूचुअल फंड को डिवाइड करते होती है कि आपके अंदर एज अ इंडिविजुअल आप पैसे पे कर रहे हो, तो आपके अंदर कितना गट्स है और उस इन्वेस्टर के अंदर कितना बिलीव है खुद के ऊपर। तो इसके बेसिस पे भी दो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पहला है पैसिव और दूसरा है एक्टिव। पैसिव में वो लोग आते हैं जिनको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। बॉस मैं उठूँगा टॉप 30 निफ्टीज़ या टॉप 30 सेंसेक्स, इन सब चीज़ों को पकड़ूंगा और इनमें इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। बिकॉज अपना तो लाइक रिकॉर्ड कहता है कि हमें 12 to 15% हमें एट द एंड गेन रिटर्न मिल ही जाता है इन सब टॉप को ब्रांड को पकड़ोगे तो, टॉप कंपनीज़ को पकड़ोगे तो अगर आपके अंदर भी उतने गट्स नहीं है, आप अगर कैपिटल अपना इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन पैसिव, तो रिटर्न ठीक ठाक मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट रिटर्न आएंगे बट ज़्यादा नहीं होंगे। वेयरएज़ अगर आप एक्टिव में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके अंदर बहुत गट्स है और सामने वाला जो इन्वेस्टर है ही इज़ प्लानिंग, उनका नेक्स्ट लेवल है, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे काफ़ी बार बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे रिटर्न आ जाते हैं, 95% तक रिटर्न आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक कुछ रिटर्न नहीं आता, बहुत बार आप बहुत नीचे चले जाते हो, बिलो द लाइन चले जाते हो, जितना सोचा था उससे भी बहुत कम रिटर्न आता है या रिटर्न लॉस में ही हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल है बट यू हैव टू थिंक कि यार जब मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन है तो मुझे बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी एट द एंड। तो ये जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं दे आर समवन जिनको प्रॉपर पता होता है, रीज़न के साथ इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ एक लक और बिलीव के फैक्टर पे नहीं कि बस आज मन किया तो ABCD करके फिर इस पर टिक मार दिया 1 2 3 4 करके, लकी नंबर मेरा 7 है तो मैं 7 पे लगा दूंगा। ऐसा नहीं है। They are someone who is just have a good information and good idea about all of the things and they have a good experience also, and वो जानते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो इसकी बैकग्राउंडल वैल्यू क्या है, लाइक वो कहाँ से चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर ऐड ऑन हो रही हैं, वो कहाँ से चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है, पूरा ग्रास रूट लेवल पे उन्हें सब कुछ पता होता है। फॉर दैट उन सब चीज़ों के बेसिस पे अगर आप जाते हो एक्टिव में इन्वेस्ट करते हो तो वो एक्टिव का पार्ट है। और पैसे वाले वो लोग हैं जिनको दिमाग नहीं लगाना, आपको रिटर्न तो दे देंगे, जाहिर सी बात है 10 से 15% रिटर्न आपको मिलेंगे। सो ये दो तरीके के म्यूचुअल फंड भी होते हैं एट द एंड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, कीप ऑन लर्निंग, मिस मी एंड बाय बाय।